everyone. This is Dr. Manoj Thakur and I welcome you all to Environment Matters. First of all, a very happy World Environment Day to all of you. The theme for this year's World Environment Day is land restoration, desertification and drought resilience. So today's topic is desertification. So today we are going to discuss what is basically desertification, what are various reasons of desertification, what are the various indicators of desertification and what measures could be taken to combat this very important issue of desertification. साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे उन सभी इनिशिएटिव्स के बारे में जो लिए गए हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर टू डील विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल थ्रेट ऑफ desertification. So let's start with today's topic on desertification. Hello everyone, today's topic is desertification, which is a very serious environmental threat, and this is Dr. Manoj Thakur, Assistant Professor for Environment Science. So these are various subtopics that we will be covering under today's lecture. First, what is basically desertification and what is its current status with respect to world or India specifically. Then what are the different indicators of desertification, what are various reasons or causes of desertification. Then we will also discuss the impacts of desertification, then what could be different mitigation or control measures to combat the problem of desertification. Then we will also discuss the United Nations Convention to combat desertification, and we will also have a look on the various initiatives that have been taken by India to combat the issue of desertification. So let's start today's lecture. So first, starting with the definition of desertification. So desertification is basically the degradation of the land in arid, semi-arid or dry sub-humid areas that may be due to human-based reasons as well as natural reasons. इसी की दूसरी definition है, that is basically it is the process in which a productive or fertile piece of land which is present in arid, semi-arid or dry sub-humid areas is converted into a non-productive or infertile, unproductive desert land as a result of poor land management, that is basically a human based reason, or it may be also due to some natural reasons. यानी कि कोई भी उपजाऊ भूमि जो किसी शुष्क या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, वो यदि किसी अनउपजाऊ भूमि में या रेगिस्तान वाली भूमि में परिवर्तित हो जाती है ड्यू टू एनी ह्यूमन बेस्ड रीजंस और एनी नेचुरल रीजंस, दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज डेजर्टिफिकेशन. ये जो टर्म है डेजर्टिफिकेशन, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय लुइस लेवर्डन इन 1927. और ये जो डेजर्टिफिकेशन की समस्या है ये पूरे वर्ल्ड में जो शुष्क क्षेत्र हैं, यानी कि जैसे इसकी डेफिनेशन में लिखा है एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं, जैसे कि अफ्रीका में जो साहिल रीजन है, एशिया में गोबी डेजर्ट है, मंगोलिया है और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्से हैं. ठीक है, इन एरियाज में ये समस्या जो है ज़्यादा देखने को मिलती है. और अगर इस तरह के जो क्षेत्र हैं इनकी बात करें, इनको बेसिकली हम लोग ड्राई लैंड्स कहते हैं, सूखे या शुष्क क्षेत्र कहते हैं. तो ड्राई लैंड्स बेसिकली पूरे अर्थ का जो है लगभग 40 to 41% जो है एरिया कवर करते हैं. और इतने एरिया में जो है लगभग जो है पूरी दुनिया की जो आबादी है उसमें से 2 बिलियन के आसपास जो लोग हैं वो इन एरियाज में निवास करते हैं. यानी कि डेजर्टिफिकेशन की समस्या से इन लोगों की जो आजीविका है या इनका जो रहन सहन है या इनकी जो लाइफस्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है. स्पेसिफिकली इंडिया की बात की जाए तो 96 मिलियन हेक्टेयर, दैट इज roughly equivalent to 29% of the total geographical area of India is undergoing desertification. यानी कि 29% इंडिया का जो एरिया है वो डेजर्टिफिकेशन के प्रभाव में है. धीरे धीरे वो जो एरिया है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है. एंड इंडिया हैज लॉस्ट नियरली 31% और 5.65 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ग्रासलैंड इन ए सिंगल डेकेड. पिछले 10 सालों में जो है लगभग 31% और 5.65 मिलियन हेक्टेयर जो ग्रासलैंड से वो इंडिया लूज कर चुका है. The extent of degraded land in India is over 105 million hectares or about 32% of the India's total geographical area. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन की. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. तो लैंड डिग्रेडेशन का जो एरिया है वो डेजर्टिफिकेशन के एरिया से भी ज़्यादा है, यानी कि 32% के आसपास है, एंड दैट इज रफली इक्विवेलेंट टू 105 मिलियन हेक्टेयर्स.
और मोर देन 80% ऑफ द कंट्रीज डिग्रेडेड लैंड लाइज इन 9 स्टेट्स। मतलब कि जितना भी इंडिया का डिग्रेडेड एरिया लैंड एरिया है वो 80% एरिया उसमें से मात्र इंडिया के 9 राज्यों में आता है, जिसमें से जो मुख्यतः राज्य हैं वो हैं आपके राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। और इंडिया विटनेस्ड एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन 28 ऑफ द 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बिटवीन 2011 to 13 एंड 2018 to 19। ठीक है, तो इंडिया का जो असेसमेंट किया गया एक 2011 में और 13 में किया गया था और एक 2018 से 19 में किया गया था। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो हैं लगभग इंडिया के 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से 21 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में डेजर्टिफिकेशन के प्रभाव देखे गए हैं, यानी कि डेजर्टिफिकेशन की जो समस्या है वो धीरे धीरे इन स्टेट्स में इंक्रीज हो रही है। So these are some of the largest deserts that are found in the world। जो पहले 4 दिए गए हैं, अरेबियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, सहारा और थार डेजर्ट, ये बेसिकली हॉट डेजर्ट्स हैं। अटाकामा डेजर्ट जो है जो चाइल में पाया जाता है पेरू में, ये वो एक कोस्टल डेजर्ट है। और उसके बाद जो गोबी डेजर्ट है, ईरानियन डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट है, टकलामकान डेजर्ट है। ये जो है हॉट और कोल्ड दोनों तरह के डेजर्ट इसमें पाए जाते हैं। आप ये सभी जानते होंगे कि हॉट डेजर्ट जो है बेसिकली एक रेगिस्तान वाला जो सूखा और गर्म रेगिस्तान है उसको कहते हैं, और जो कोल्ड डेजर्ट है बेसिकली वो इस तरह के एरियाज होते हैं जहाँ पर टोटली जो है स्नो बाउंड एरियाज होते हैं, जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। ठीक है, तो जो लास्ट के 3 है पैटागोनियन डेजर्ट, तुर्किस्तान और अंटार्कटिक डेजर्ट जो हैं, ये तीनों जो हैं एक्सक्लूसिवली कोल्ड डेजर्ट्स हैं। नाउ कमिंग टू द इंडिकेटर्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो इस तरह के क्या संकेतक चिन्ह होते हैं जो कि ये सिग्निफाई करते हैं कि यहाँ डेजर्टिफिकेशन की समस्या जो है धीरे धीरे आ रही है या आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ फिजिकल इंडिकेटर्स की। तो फिजिकल इंडिकेटर्स में देयर मे बी डिक्रीज इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलिटी, यानी कि जो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए या सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाए। दूसरा, सॉइल कॉम्पैक्शन एंड सैलिनाइजेशन, यानी कि मिट्टी जो है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाए ड्यू टू प्रेशर ऑन दैट पर्टिकुलर सॉइल ड्यू टू वेरियस रीजंस, या फिर मिट्टी में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स या जो नमक की मात्रा है, सॉल्ट्स की जो कंटेंट है वो बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो सॉइल की सैलिनाइजेशन की समस्या आ जाए। ठीक है, देन देयर मे बी सिवियरिटी ऑफ डस्ट एंड स्टॉर्म्स, जहाँ पर धूल भरी आंधी या तूफान जो हैं चलते रहें। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो फिजिकल इंडिकेटर्स कहलाते हैं डेजर्टिफिकेशन के। नाउ कमिंग टू द बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में फर्स्ट जो इंडिकेटर है दैट इज डिक्लाइन इन द लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द प्रोडक्शन, यानी कि जो पालतू पशु हैं वो क्या खाएंगे, चारा खाएंगे। तो चारा जब नहीं मिलेगा बेसिकली दैट मे बी ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन, तो देयर विल बी decrease in the livestock population as well as their production, whether it is biomass production or whether it is milk or egg production. So next is decrease in biodiversity and crop yield। तो जहाँ पर खेत हैं वहाँ क्रॉप जो फसलें हैं उनकी जो yield है यानी कि प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, और जहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि नेचुरल ग्रास लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पर भी जो पेड़ पौधे और घास है वो कम होने शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। देन देयर में बी ऑल्टरेशन ऑफ की स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो डिफरेंट फॉनल स्पीसीज हैं वो डेजर्टिफिकेशन के प्रभाव से धीरे धीरे जो हैं उस स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो स्पीसीज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो सकती है। तो ये भी डेजर्टिफिकेशन का एक जो है इंडिकेटर हो सकता है। देन कमिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आर्थिक और सामाजिक इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है चेंज इन द सेटलमेंट पैटर्न और अबेंडनमेंट ऑफ द विलेजेस, यानी कि जब लोगों की जो फसल की पैदावार है वो कम हो जाएगी, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, ठीक है, या उनकी जो आजीविका है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से उनको वो एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सेटल हो जाएंगे। ठीक है, जब वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ से फिर माइग्रेट कर जाएंगे, किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। तो दैट इज बेसिकली नोन एज चेंज इन द सेटलमेंट पैटर्न्स। देन इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स एंड ट्राइब्स, तो एक
जो गांव के लोग हैं जब दूसरी जगह पर जाकर रहना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ के लोग जो हैं उनको वेलकम तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके जो रिसोर्सेज हैं यानी वाटर है या बाकी के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लकड़ी है, घास है, उसके लिए जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देन देयर विल बी डिक्रीज इन इनकम एंड एसेट्स। ये ऑलरेडी जो है लोगों की जो लाइवलीहुड जो है जब जाएगी तो डेफिनेटली उनकी इनकम जो है वो भी कम हो जाएगी। देन चेंज इन रिलेटिव डिपेंडेंस ऑन द कैश क्रॉप्स। तो जो कैश क्रॉप्स या बाकी की जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस जो है कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी क्रॉप्स हैं डेजर्टिफिकेशन के प्रभाव से जो है, जो हमारी लैंड जो है वो फर्टाइल लैंड से अनफर्टाइल या फिर जो है इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो है लोगों की क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी, वो दूसरे साधन ढूंढने लगेंगे अपनी आजीविका कमाने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशियोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ द desertification. Now coming to the causative factors or what are various reasons of desertification. क्या कारण है desertification के? तो कारण जो हैं दोनों तरह के हो सकते हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन बेस्ड भी हो सकते हैं। नेचुरल कारण में जो है क्लाइमेट चेंज है, सूखा पड़ना है, ज़्यादा तेज हवा चलना यानी हाई विंड वेलोसिटी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तापमान होना, वो भी एक जो है नेचुरल कारण है। और जो ह्यूमन बेस्ड रीजंस हैं उसमें जो है अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, या बहुत ज़्यादा पशुओं की चराई करवाना, ओवर ग्रेजिंग है, पेड़ों का काटना, डिफॉरेस्टेशन है, देन मिसयूज ऑफ और पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज हो सकता है, देन माइनिंग एक्टिविटीज़ भी कुछ हद तक जो है डेजर्टिफिकेशन का कारण बन सकती हैं। अब इन सभी कारणों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द नेचुरल फैक्टर्स, जो प्राकृतिक कारण है डेजर्टिफिकेशन के, जिसमें कि सबसे मेन है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में सबसे पहला जो रीज़न है दैट मे बी द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर क्या है वो एवरेज टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। देयर इज इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चाहे वो बहुत तेज बारिश होना या बाढ़ आना या फिर सूखा पड़ना, इस तरह की जो घटनाएं हैं वेदर रिलेटेड वो जो है काफ़ी आम हो गई हैं, जिसकी वजह से भी जो है डेजर्टिफिकेशन की समस्या जो है वो बढ़ सकती है। दूसरा है ड्रॉट। ड्रॉट भी एक तरह से क्लाइमेट, इन सब चीज़ों को हम लोग अलग अलग करके डिस्कस नहीं कर सकते, सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना, तो इस तरह की जो समस्या है वो काफ़ी कॉमन है। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जो इक्वेटर के आसपास के एरियाज़ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर इस तरह की समस्या जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो है वाटर इनफिल्ट्रेशन जो है काफ़ी कम हो जाती है। जो लैंड की वाटर रिटेंशन की क्वालिटी है यानी पानी को रोक के रखने की क्षमता, या फिर जो इनफिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है लैंड की, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स हैं वो रिचार्ज नहीं हो पाते और सरफेस वाटर भी जो है वो रन ऑफ की फॉर्म में जो है वहाँ से बह जाता है जब भी बारिश होती है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है एयरबोर्न डस्ट जो है वो काफ़ी कॉमन हो जाती है इन एरियाज़ में। तो इस तरह का जो एग्जांपल है वो हम लोग साहेलियन जो सुडानिक जोन है अफ्रीका में, SSZ जोन, उसमें इस तरह का जो डेजर्टिफिकेशन है वो कॉमनली पाया जाता है ड्यू टू ड्रॉट। सेकेंड इज़ वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि जो सन का टेम्परेचर है अगर वो बहुत ज़्यादा हाई रहे, ठीक है, विच इज़ अगेन वेरी कॉमन इन ट्रॉपिकल एरियाज़। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो एरियाज़ हैं वो बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ कहलाते हैं। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल ऑल्सो बी वेरी हाई। बारिश होगी भी तब भी जो है ड्यू टू वेरी हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है पानी रुक नहीं पाएगा और सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। नेक्स्ट है वेरी हाई विंड स्पीड्स। तो बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलने की वजह से भी जो है दे आर द वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन सिर्फ पानी की वजह से नहीं होता है, बहुत तेज हवाएं चलने की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। और इट बेसिकली हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स, यानी कि जो रेगिस्तान की रेत है वो हवाओं के साथ एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर जाती है, जिसकी वजह से दूसरी जगह पर अगर कोई छोटी मोटी घास है या कोई ऑर्गेनिक मैटर वाली सॉइल है, फर्टाइल लैंड है, वो रेत से जब कवर हो जाएगी तो अगेन वो भी जो है एक डेजर्ट में तब्दील हो जाएगी। देन इट ऑल्सो रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, यानी कि तेज हवाएं जब चलती हैं तो मिट्टी की जो आर्द्रता है यानी कि उसमें जो वाटर कंटेंट है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स थे जो कहीं ना कहीं डेजर्टिफिकेशन की जो समस्या है उसको बढ़ाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ह्यूमन बेस्ड फैक्टर्स, यानी कि जो मानव
आधारित जो कारण हैं डेजर्टिफिकेशन के, सबसे पहला है अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि इस तरह की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो सस्टेनेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। जैसे कि सबसे पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पुराने टाइम में क्या होता था कि आपने एक जगह से जंगल साफ किए वहाँ खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है, एक साल, अगले साल आपने दूसरी जगह नया जंगल साफ किया, वहाँ पर खेती बाड़ी की, उसके अगले साल आपने तीसरे साल जो है अगर तीसरा एक और जंगल साफ किया, वहाँ खेती बाड़ी की। इस तरह से क्या है कि हम लोग धीरे धीरे जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं हमारे, उनको डिफॉरेस्ट कर रहे हैं या उनको डिग्रेड कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहीं से भी किसी प्रकार से इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है। देन देयर आर सम इम्प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस। इम्प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करना, यानी कि खेत को पूरे पानी से भर देना ही जो है इरिगेशन नहीं होती। इरिगेशन के और भी एडवांस तरीके हैं, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, यानी कि जहाँ पर पौधे की जड़ें हैं सिर्फ वहीं पर जो है बूंद बूंद करके उसको इरिगेट किया जाए। इस तरह की जो है चीज़ें आजकल आ चुकी हैं, आ गई हैं, तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग यूज़ में लाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इम्प्रॉपर इरिगेशन जो है एक अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। देन वेरी हाई यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। तो एग्रीकल्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं कहीं ना कहीं जो है हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं और सॉइल की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी कि फर्टिलिटी है उसको भी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है उसको डिग्रेड करते हैं, कम करते हैं। सेकेंड रीजन इज ओवर ग्रेजिंग, यानी कि पशुओं की अत्यधिक चराई, यानी कि पशुओं को अगर आप एक ही जगह पर उस एरिया की एक पर्टिकुलर लाइफ स्टॉक होल्डिंग कैपेसिटी होती है, अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा पशुओं को वहाँ चराएंगे तो वहाँ की जो घास है दोबारा से उग नहीं पाएगी, ठीक है। दैट बेसिकली रिड्यूसेस द वेजिटेशन कवर, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ से जो घास है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और ओवर ग्रेजिंग ऑल्सो प्रमोट सॉइल इरोजन, इट ऑल्सो कॉजेज सॉइल कॉम्पैक्शन एंड रिड्यूस्ड पोरोसिटी, ठीक है। जब पशु वहाँ से चलेंगे, रेगुलरली जो है वहाँ चरेंगे और चलेंगे, तो उसकी वजह से सॉइल जो है कॉम्पैक्ट हो जाती है और सॉइल में जो एयर की जाने की जो क्षमता है, जो पोरोसिटी है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल एयर जो है कम हो जाती है। और इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रन ऑफ एंड इट रिड्यूसेस द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो सॉइल जब कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो पानी जो है सॉइल के ऊपर ऊपर से बह जाएगा और ज़मीन के नीचे जो है वो रिस नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा और आने वाले टाइम में वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है ड्यू टू वाटर स्कैरिसिटी जो है वो ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। नेक्स्ट कारण है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का काटना। तो पेड़ जो हैं वो क्या करते हैं, ओवरऑल जो है हमारे वाटर साइकिल और क्लाइमेट को मॉडरेट करते हैं, मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो जब पेड़ों को काटेंगे तो उसकी वजह से जो है सॉइल इरोजन होगा, सॉइल कॉम्पैक्शन होगी, पोरोसिटी रिड्यूस होगी, रन ऑफ रेट बढ़ेगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है कम हो जाएगा, वही सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट इज पुअर वाटर मैनेजमेंट। पुअर वाटर मैनेजमेंट का मतलब है कि वाटर को मिसयूज करना या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको जरूरत से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेना, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर एक्विफर्स हैं वो डिप्राइव हो जाएंगे, वाटर की जो है स्कैरिसिटी हो जाएगी उसमें। देन बहुत ज़्यादा जो है वाटर लॉगिंग की वजह से सैलिनाइजेशन की समस्या भी आ सकती है, मिट्टी में जो खारापन है वो बढ़ सकता है, ठीक है। और इम्प्रॉपर इरिगेशन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पुअर वाटर मैनेजमेंट। देन वाटर को जो है पॉल्यूट ना हम लोग करें, साफ सुथरा रखें, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है हमें रखना पड़ेगा। एंड लास्ट इज द माइनिंग, यानी कि मिनरल्स को या किसी भी तरह की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको निकालने के लिए ज़मीन से, उसको बोलते हैं माइनिंग। then that is basically one of the reason for land degradation, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, यानी कि कहीं पर भी अगर हम खुदाई करेंगे तो सॉइल जो है वो लूज होगी, इरोड होगी, जिसकी वजह से। और माइनिंग करने के लिए हमें जो है कई जगहों पे जो है बड़े बड़े माइनिंग एरियाज होते हैं, तो माइनिंग करने से पहले वहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं उनको क्लियर करना पड़ता है। तो फॉरेस्ट को जब क्लियर करेंगे तो वो भी एक तरह से डेजर्टिफिकेशन का कारण बनेंगे। और जो जिस भी चीज़ की हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोयले की माइनिंग कर रहे हैं, तो कोयले में जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सल्फर है, तो वो कहीं ना कहीं जो है एयर के वाटर के साथ मिलकर जो है H2SO4 बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जिसको कि हम लोग एसिड माइन ड्रेनेज कहते हैं, और आसपास की जो मिट्टी है और जो पानी के स्रोत हैं उनको भी
पल्यूट कर देते हैं। और कई बार जो है जैसे कोयले की खदानें हैं उनमें अंडरग्राउंड फायर लग जाती है जो कई दशकों तक और सैकड़ों सालों तक जो है वो जलती रहती है। तो उस तरह के इंसिडेंट्स की वजह से भी जो ऊपर की जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द ह्यूमन बेस्ड फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन। नाउ स्टार्टिंग विद द इम्पैक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, यानी कि डेजर्टिफिकेशन के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, पर्यावरण के ऊपर उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। इन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स द फर्स्ट इम्पैक्ट इज द डिटोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। सो बेसिकली दो मिट्टी की जो क्वालिटीज हैं वो डिटेरियोरेट होती हैं। द सॉइल बिकम्स डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमस एंड मॉइस्चर कंटेंट। मिट्टी का जो बेसिकली डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है और वाटर कंटेंट जो है मिट्टी का वो धीरे धीरे कम होता जाता है। द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल में इंक्रीज विच में कॉज सॉइल सैलिनिटी एंड द सॉइल में बिकम अनेबल टू सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ, यानी कि जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल जो है ना तो एग्रीकल्चर और ना ही जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट नहीं कर पाती है। एंड द सॉइल बिकम्स क्रैक्ड, कॉम्पैक्ट एंड फ्लेकी, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। सेकेंड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट इज द बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनका लॉस हो जाता है। जैसे कि अगर जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से पास्चर लैंड्स में जो एडिबल स्पीसीज हैं, यानी कि जिनको पशु खाते हैं, वो स्पीसीज जो हैं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और सिर्फ जो कांटेदार और इन एडिबल स्पीसीज हैं जिनको पशु नहीं खाते हैं वही बचती हैं। और जो बाकी एरियाज की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वेजिटेशन पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, धीरे धीरे जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, घास हैं, वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो जाती है। और पेड़ पौधे और घास के सूखने से जो बाकी के जीव जंतु हैं, जंगली जानवर हैं, वो भी जो हैं कहीं ना कहीं माइग्रेट करना शुरू कर जाते हैं। उनके जो पॉपुलेशन पैटर्न है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और हो सकता है कि कुछ स्पीसीज जो हैं वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाए या ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ की जो फूड चेन है वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाती है। Then desertification may also be the reason of climate change. Climate change जो है desertification का कारण भी हो सकता है और प्रभाव भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रभाव की बात कर रहे हैं, यानी कि जो वेजिटेशन है बेसिकली, यानी पेड़ पौधे या बाकी की चीज़ें जो हैं, जो बेसिकली बायोमास है, ग्रीन बायोमास था कभी, वो जब डेड होगा या उसकी जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म होगी तो उस बायोमास में 50% जो है लगभग कार्बन स्टोर्ड होता है। तो वो कार्बन जो है कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इन द फॉर्म ऑफ मीथेन। और मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारण बनती हैं। तो इस प्रकार से डेजर्टिफिकेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है। देन देयर विल बी रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर। तो वाटर की क्वालिटी, एयर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड करेगी। तो वाटर की बात करें, क्योंकि उसमें वाटर की जो क्वांटिटी है कम हो जाएगी, सिल्टेशन की समस्या आएगी, सेडिमेंटेशन की समस्या आएगी, तो वाटर की क्वालिटी जो है वो नेचुरली जो है खराब होगी। और एयर की बात करें तो वहाँ जो है आंधी तूफान चलेगा, मिट्टी जो है लूज सॉइल है, रेतीली मिट्टी है, तो उसके डस्ट स्टॉर्म्स, धूल भरी आंधियाँ चलेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है एयर की क्वालिटी डिग्रेड होगी, विजिबिलिटी रिड्यूस होगी और एयर पोल्यूशन होगा। तो ये जो है डेजर्टिफिकेशन का इम्पैक्ट पड़ता है एयर की और वाटर की क्वालिटी के ऊपर। नेक्स्ट इज वाटर स्कैरसिटी, यानी कि जो हमारे सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं, जो नदियां हैं, नाले हैं या फिर तालाब हैं, वो सूख जाएंगे। जो हमारे अंडरग्राउंड एक्वीफर्स हैं उनका वाटर टेबल भी जो है काफ़ी नीचे चला जाएगा और देयर विल बी एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ द पोर्टेबल वाटर फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज लाइव स्टॉक, यानी इंसानों और जानवरों, पालतू जानवर और जंगली जानवर है उनके लिए भी पीने के लिए जो है पानी नहीं रहेगा। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं डेजर्टिफिकेशन के। Now coming to the third types of impacts that are socio-economic consequences और impacts। तो सबसे पहले हम लोग जैसे जानते हैं डेजर्टिफिकेशन में जो है सॉइल की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सॉइल की जब प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी खत्म होगी तो इनडायरेक्टली जो है हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है या एग्रीकल्चर की जो ईल्ड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फूड
जो सिक्योरिटी है वो हमारी हैम्पर हो जाएगी। सभी लोगों के लिए जो है एक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड कर पाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, जो गुड्स हैं उन पे प्राइसेस जो हैं इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज इन द गैप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, चाहे फूड आइटम से या बाकी की चीज़ें हैं, वो हमें हो सकता है बाहर के प्रदेशों से या देशों से जो हैं आयात करनी पड़े, इंपोर्ट करनी पड़े। देन देयर विल बी लॉस ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, तो जब जंगल नहीं रहेंगे, खेत नहीं रहेंगे, ठीक है, तो जो लोगों की आजीविका है वो भी कहीं ना कहीं इससे हैम्पर होगी, जिसकी वजह से वो लोग अपनी आजीविका से भी हाथ गंवा बैठेंगे। देन देयर विल बी इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ केयर। तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, एयरबॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं, वाटरबॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डेजर्टिफिकेशन की वजह से। तो हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। और लोगों, क्योंकि जब वो कोई एरिया डेजर्टिफिकेशन की चपेट में आता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो किसी दूसरी जगह को माइग्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक बेसिकली डिजास्टर ही है। और उन लोगों को दूसरी जगह पर रिहेबिलिटेट और रीसेटल करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो एक तरह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। देन लोग जब एक जगह से माइग्रेट करेंगे, दूसरी जगह पर सेटल करेंगे, तो वहाँ के लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, नेचुरली उनको वेलकम तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के रिसोर्सेज शेयर करने आए हैं। तो कोई भी लोग जो हैं अपने रिसोर्सेज को शेयर नहीं करने देंगे। तो पानी के लिए लड़ाई हो सकती है, फूड के लिए लड़ाई हो सकती है, बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज की लड़ाई हो सकती है, जंगलों के लिए, लकड़ी के लिए, घास के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए सोशल अनरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज और इम्पैक्ट्स ऑफ द डेजर्टिफिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस how to combat this problem of desertification in the coming slides. So in order to combat or mitigate the problem of desertification, first of all, the most important thing is that we should adopt the sustainable land management practices. So sustainable land management practices की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्रमोट एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, यानी कि जितने ज़्यादा हम लोग जंगल लगाएंगे, एफॉरेस्टेशन मीन्स किसी ऐसी जगह पर जंगल लगाना जहाँ पहले जंगल नहीं थे, और रिफॉरेस्टेशन मीन्स ऐसी जगह पे जंगल लगाना जहाँ पहले जंगल थे लेकिन इंसानों ने अपनी ज़रूरतों के लिए उनको काट दिया और वहाँ पर दोबारा से प्लांटेशन करने को हम लोग कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन जो है सबसे बेस्ट टेक्निक है किसी भी एरिया की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत सारी जो हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, सल्फर साइकिल, जितने भी साइकिल्स हैं उन सभी, ऑक्सीजन साइकिल, इन सभी साइकिल्स को जो है रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मीन्स जहाँ पर हम फॉरेस्ट्री के साथ साथ कुछ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है कहीं ना कहीं जो है एक तो हमें लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, हमारी फूड जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने में हेल्प करती है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको इंटैक्ट रखने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ जो है जो सॉइल की प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी कि फर्टिलिटी है उसको बरकरार रखने में भी ये मददगार साबित होती है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। वी शुड प्रमोट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। तो सॉइल कंजर्वेशन में जैसे मल्चिंग है, यानी कि जो फसलें हम लोग काट लेते हैं उनके जो रेजिड्यूज बच जाते हैं उनको हम जलाएं नहीं, उनको फेंकें नहीं, उनको दोबारा से उन्हीं खेतों में दोबारा से बारीक श्रेड करके जो है यूज़ कर लें, जिससे कि आपकी सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और दूसरा जो है सॉइल का वाटर मॉइस्चर कंटेंट भी जो है वो रिटेन रहेगा। देन वी शुड अडॉप्ट कंटूर प्लोइंग, यानी प्लोइंग करें तो कंटूर्स में करें ताकि जो है सॉइल इरोजन कम से कम हो और जब बारिश हो तो बारिश का पानी एकदम से रन ऑफ की फॉर्म में ना बह जाए, उन कंटूर्स में रुका रहे ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन टिलेज, यानी कि पूरे के पूरे खेत को खेती करने के लिए प्लो करने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर आपने फसल के बीज लगाने हैं, कुछ कुछ फसलों के लिए एप्लीकेबल है, सभी के लिए नहीं एप्लीकेबल है, तो जहां पर फसल के बीज लगाने हैं सिर्फ वहीं पर सॉइल को डिस्टर्ब किया जाए, बाकी जगहों पर सॉइल को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो इससे भी जो है सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है। देन स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप्स की फॉर्म में जो है फसलों को लगाना, मिक्स क्रॉपिंग, अलग अलग फसलों को लगाना, ठीक है, एक साथ जो है अलग अलग फसलों को लगाना, और क्रॉप रोटेशन मतलब एक सीजन में एक फसल, दूसरे सीजन में दूसरी फसल, इन सभी मेथड से जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी है, यानी कि जो एक फसल जो न्यूट्रिएंट्स लेती है वो दूसरे फसल जो है
उस न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश कर देती है। अगर हम एक ही तरह की फसल एक ही सॉइल में हमेशा लगाते रहेंगे तो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो वो फसल के लिए रिक्वायरमेंट है, वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उस सॉइल से जो है एकदम से खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अलग अलग टाइप की फसलें जो हैं अलग अलग सीजन्स में और इवन एक साथ जो है लगानी चाहिए ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है टू कॉम्बैट द इफेक्ट्स ऑफ विंड। तो विंड के जो कुप्रभाव हैं, जो तेज हवाएं हैं, वो काफ़ी हद तक डेजर्टिफिकेशन की समस्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो ये है कि जो रेत को वो उड़ा के ले जाती हैं दूसरी जगहों पे जहाँ पर डेजर्ट्स नहीं हैं, वहाँ पर डेजर्ट्स बना देती हैं। तो इसके लिए सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन जो मेथड है वो काफ़ी हद तक जो है कारगर साबित हुआ है। इसमें जो है पत्थर की दीवारें दी जाती हैं जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, या लकड़ी की दीवारें दी जाती हैं ताकि जो अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से तेज हवाएं चलने से भी जो है बहुत ज़्यादा सैंड जो है इन ब्लॉक से उड़कर दूसरी जगह नहीं जाता। ये दीवारें एक तरह से उसको स्टेबलाइज कर देती हैं। देन शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, इस तरह की प्लांटेशन जो आप पिक्चर में देख रहे हैं शेल्टर बेल्ट की फॉर्म में जो है उस तरीके से हमें करनी चाहिए। देन वाटर इरोजन को जो है ड्यू टू जो इरोजन सॉइल का इरोजन हो रहा है ड्यू टू वाटर, उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग कंटूर बंडिंग कर सकते हैं। यानी कि जो खेत हैं उनके चारों तरफ जो है कंटूर्स बना सकते हैं, जिसको हम मेड़ बोलते हैं हिंदी में। तो मेड़ बनाने से जो बारिश का पानी है डायरेक्टली आपके खेत से बह नहीं जाएगा, थोड़े टाइम वहाँ रुकेगा, तो जिसकी वजह से आपका सॉइल इरोजन जो है वो नहीं होगा। ठीक है। और जो हमारी मेड़ है यानी कि जो कंटूर्स बनाए हैं उन रिजीज में और फरोज में जो है वहाँ पर भी जो है हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, कल्टीवेशन करनी चाहिए। ठीक है। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कुछ रिजीज की फॉर्म में, जैसे हम लोग हिमाचल की बात करें, हिमाचल में भी अगर आलू की फसल लगाते हैं तो उसमें हम लोग इस तरह के रिजीज बनाते हैं और रिजीज में जो है प्लांटेशन करते हैं। तो ये भी जो है एक तरह से वाटर इरोजन से सॉइल को रोकने का जो है एक कारगर मेथड है। और वी शुड प्रमोट ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर टेबल अप रहेगा उतनी ज़्यादा सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रहेगा और उतनी ज़्यादा सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी आपकी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट इज वी शुड अडॉप्ट सस्टेनेबल ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस और वी शुड अडॉप्ट द रेंज लेंथ मैनेजमेंट। यानी कि हमें जो ग्रेजिंग करवानी है किसी भी एरिया में, सबसे पहले तो हमें वहाँ की जो ग्रेजिंग कैपेसिटी या वहाँ की जो लाइफ स्टॉक होल्डिंग कैपेसिटी है वो पता होनी चाहिए, यानी कि किस प्रकार की वनस्पतियाँ वहाँ पाई जाती हैं और कितने पशुओं को वो जो है सपोर्ट कर सकती हैं। तो उतने ही पशुओं को वहाँ चराया जाए और अलग अलग हमें पैडॉक्स बना लेने चाहिए, ब्लॉक्स बना लेने चाहिए। एक पैडॉक में अगर एक साल चलाया है तो अगले साल या अगले सीजन के लिए उस पैडॉक को रीजनरेट करने के लिए छोड़ देना चाहिए, नेक्स्ट पैडॉक में हम लोग चराएं और 2 साल बाद फिर घूमकर उस पहले वाले पैडॉक में आए ताकि वहाँ की जो वनस्पति या घास है उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाए रीजुविनेशन के लिए, रीजनरेट होने के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे तो डेजर्टिफिकेशन की समस्या जो है काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। देन वी शुड एंश्योर द कम्युनिटी एंगेजमेंट। जो लोकल लोग हैं वहाँ के, जो आम लोग हैं, आम जनमानस है, उनको एंगेज करना ज़रूरी है अपनी सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में, क्योंकि जो ट्रेडिशनल नॉलेज उन लोगों के पास है वो ट्रेडिशनल नॉलेज काफ़ी हद तक जो है कारगर साबित हुआ है इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए। तो वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो हमारे साइंटिफिक नॉलेज से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है, इस तरह की समस्याओं को कम करने में कारगर साबित हुआ है। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एनजीओज हैं या फिर जो हमारे लोकल कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब की जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको टेक्निकल सपोर्ट या असिस्टेंस प्रोवाइड करना या रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ये ज़रूरी है ताकि वो जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको एंश्योर कर सकें। नेक्स्ट है पॉलिसी एंड गवर्नेंस, यानी कि जो हमारे पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं या रेगुलेशंस हैं वो भी इस तरह के होने चाहिए, उन्हें प्रोविजन शुड बी देयर इन दिस पॉलिसीज और लॉज फॉर सस्टेनेबल लैंड यूज चेंज, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो लॉज और पॉलिसीज काफ़ी सारे बने हैं, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, लेकिन इन लॉज और पॉलिसीज़ की ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होना भी ज़रूरी है प्रॉपर तरीके से। लास्ट इज इंटरनेशनल कॉपरेशन, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन जो है एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो है इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस ज़रूरी हैं ताकि जो एक
कंट्री है वो दूसरी कंट्री के साथ जो अपने नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और रिसोर्सेज हैं वो शेयर कर सकें, ताकि हम लोग जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन और शेयरिंग के साथ जॉइंटली जो हैं इस समस्या से निपट सकें और बाहर निकल सकें. So that was about the different mitigation or combating measures for the desertification. Now we will discuss about the UNCCD. UNCCD stands for United Nations Convention to Combat Desertification. तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो अर्थ समिट हुआ था उसमें 3 कन्वेंशंस निकल कर आई थी. सबसे पहली थी आपकी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज UNFCCC. सेकंड वन वाज UNCBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द थर्ड वन वाज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, दैट इज UNCCD. ठीक है, तो जो फर्स्ट 2 कन्वेंशंस हैं, वन इज़ फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड अनदर वन इज़ फॉर क्लाइमेट चेंज, ये हम लोग उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं या करेंगे. जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे UNCCD के बारे में. सो दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन वाज फॉर डेजर्टिफिकेशन, फॉर टू कॉम्बैट द इशू ऑफ डेजर्टिफिकेशन, और ये जो है इट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1994 एंड फर्दर रेटिफाइड इन द ईयर 1996. 94 में इसको अडॉप्ट किया गया था और 96 में इसको रेटिफाई किया गया था. एंड दिस इज द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. तो ये एकमात्र एक ऐसी लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट या कन्वेंशन है जो लैंड मैनेजमेंट को जो है लिंक करती है एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के साथ. इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में बात करें, सो इट बेसिकली एम्स टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. सेकेंड वन इज टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, यानी कि जो सूखा पड़ता है उसके प्रभावों को मिटिगेट करना, कम करना. एंड द थर्ड वन इज टू प्रमोट सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, particularly in arid, semi-arid and dry subhumid areas which are basically known as dry lands where some of the most vulnerable ecosystems and peoples are found. यानी कि जो एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सबह्यूमिड एरियाज हैं, यानी कि शुष्क या अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हैं जिनको कि हम ड्राई लैंड्स भी कहते हैं, शुष्क क्षेत्र भी कहते हैं, जहां पर कि जो है मोस्ट वनरेबल इकोसिस्टम और लोग पाए जाते हैं जो कि डेजर्टिफिकेशन का शिकार हो रहे हैं, ऐसे एरियाज में डेजर्टिफिकेशन को कम करना, सूखा पड़ने के प्रभावों को कम करना और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना. तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं. और इंडिया की बात करें तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसकी नोडल एजेंसी है जो इस तरह के सारे इशूज से डील करती है डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड. और जो इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि जो भी कन्वेंशंस बनती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी स्कॉप्स होती हैं जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि हर साल या 2 साल में एक मीटिंग्स होती हैं जिसमें कि पीछे की जो भी प्रोग्रेस हुई है उसको डिस्कस किया जाता है और आगे का जो एक्शन प्लान है वो बनाया जाता है. तो जो 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी UNCCD की, वो 2019 में इंडिया में हुई थी और इंडिया वाज द कॉप प्रेसिडेंट फॉर 2019 to 21. ये जो है रूटीन में जो है अलग अलग कंट्रीज को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. 2019 से 21 तक इंडिया को जो है कॉ प्रेसिडेंट बनाया गया था UNCCD का. और ये कॉन्फ्रेंस जो है ग्रेटर नोएडा में हुई थी एंड द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाज रिस्टोर्ड लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर. और इंडिया जो है इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉन चैलेंज का पार्ट भी है इंडिया, जो कि एक इंटरनेशनल एफर्ट है जिसके हिसाब से लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर जो है डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड को रिस्टोर करना है बाय द ईयर 2020. और 2030 तक जो है 350 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड को रिस्टोर करना है. तो इंडिया बॉन चैलेंज का पार्ट है और इस जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है भरपूर प्रयास कर रहा है. अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ इंडिया के इनिशिएटिव्स के बारे में जो डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया में टाइम पर लिए गए हैं. सबसे पहला है जैसे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया था. इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो जो हमारे डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको रिस्टोर करने का था और साथ ही साथ जो है जो रूरल लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनकी आजीविका को सुनिश्चित करने का था. और अब इस स्कीम को जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है नीति आयोग जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है.
दूसरा प्रोग्राम या स्कीम थी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जो है 1995 में लॉन्च किया गया था इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट एंड टू रिजुविनेट द नेचुरल रिसोर्स बेस ऑफ द आइडेंटिफाइड डिजर्ट एरियाज। यानी कि सूखा पड़ने के जो एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करना, और जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको रिजुविनेट करना। तो इसमें जो है कुछ एरियाज़ हमारे हॉट डेजर्ट एरियाज़ आते हैं, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, और कुछ इसमें हमारे जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल के कोल्ड डेजर्ट एरियाज भी आते हैं। थर्ड वन, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इस कन्वेंशन के हिसाब से इंडिया इज वर्किंग टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाई 2030, जो कि पीछे हमने बताया था बॉर्न चैलेंज, एंड इंडिया इज वर्किंग हार्ड टू अचीव इट्स नेशनली कमिटमेंट ऑन लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। तो ये जो है हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 15, दैट इज 15.3, उसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करता है। नेक्स्ट इज नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। तो ये भी एक स्कीम है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, और दिस स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया सिंस 2000 टू बेसिकली एफॉरेस्ट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, यानी कि जो फॉरेस्ट लैंड डिग्रेड हो चुके हैं या डीफॉरेस्ट हो चुके हैं उनको दोबारा से एफॉरेस्ट और रिजुविनेट करने का इसमें जो है प्रोग्राम चलाया गया है, एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एट सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स एट स्टेट और UT level. Next one is National Action Plan to Combat Desertification. ये जो है this plan was prepared in the year 2001, and the main aim was to address the issue of increasing desertification and to take the appropriate actions. The next one was National Mission on Green India. Green India Mission के बारे में आप सभी जानते होंगे. It is the part of the NAPCC, National Action Plan for Climate Change, or it has been approved in the year 2014 with the objective of protecting, restoring and enhancing India's diminishing forest cover with the deadline of 10 years. यानी कि 10 साल में जो इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर डिमिनिश हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसको दोबारा से प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना और एनहांस करना इसका ऑब्जेक्टिव है. सो दीज आर सम ऑफ द initiatives that India has taken to combat this very important issue of desertification. इन स्कीम्स के बारे में आप लोग डिटेल में जो है सर्च करके और ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में गेन कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट और बुक्स. But our objective to discuss these schemes here was basically to give an overview, just an overview, what are the different initiatives that India has taken to combat such type of issues like desertification. और लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि 17th June is celebrated every year as World Desertification and Drought Day, and the theme for this year's Desertification and Drought Day is United for Land, Our Legacy and Our Future. और इन्हीं शब्दों के साथ जो है आज का ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूं, और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर आप वो हमारे साथ शेयर करें. इस चैनल को यानी कि इन्वायरमेंट मैटर्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर जो अपडेट्स हैं डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ या मैटर्स के बारे में वो आपको रेगुलरली मिलते रहें. सो थैंक यू ऑल वंस अगेन.